Hello student, our today's topic is capacitor and the capacitance. What is capacitor? Capacitor is a system of two conductors separated by an insulator. क्या होता है कैपेसिटर? कैपेसिटर एक सिस्टम होती है, उसमें दो कंडक्टर्स होते हैं और वो दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं बाय द इंसुलेटर. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द कैपेसिटर. I just draw the basic diagram of a capacitor. This is one conductor. Conductor 1, and this is the another conductor. I have drawn a conductor of arbitrary shape. Conductor 2, right? On one conductor there is a positive charge and on the second conductor there is a negative charge. Charge on the first conductor is Q1 and charge on the second conductor is Q2. The potential on the first conductor is V1 and potential on the second conductor is V2. Now usually the amount of charge on the first and the second conductor is always same. So charge on first conductor Q1 is equal to plus Q and charge on the second conductor is Q2 is equal to minus Q. On both the conductor the amount of charge are equal but they are unlike in nature. Okay, here potential difference between the two conductors is V1 minus V2. So V1 minus V2 is potential difference between two conductors. Okay, now student, the electric field between the two conductors is directly proportional to the charge on the conductors. That means if the amount of charge on the conductor increases, then electric field between the two conductor also increases. So E is proportional to charge on conductor, right? ये दो कंडक्टर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसको प्रोपोर्शनल है? दैट इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज. इफ चार्ज इज मोर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो मोर. नाउ स्टूडेंट, V1 minus V2 is the potential difference between two conductors. Now according to the definition, what is the meaning of potential difference between the two conductors? The potential difference between the two conductor is work done per unit positive charge in taking it from the conductor 2 to the conductor 1 against the electric field. तो यहाँ पर अगर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज के प्लेस पर अगर आप Q चार्ज को लेकर जाते हो तो जो वर्क डन होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द चार्ज Q. इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो कंडक्टर के बीच में, जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द चार्ज. हियर the ratio of charge
एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर, ये V क्या है, ये जो V1 माइनस V2 है वो ही V है. सो Q इज अ चार्ज ऑन द कंडक्टर. वन कंडक्टर के ऊपर प्लस Q चार्ज है, सेकंड कंडक्टर के ऊपर माइनस Q चार्ज है. सो दिस Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ईच कंडक्टर. एंड व्हाट इज दिस V? V is a potential difference between the two conductor. So here the ratio Q by V is constant. Q by V is constant, and this constant is known as the capacitance of the conductor, capacitance of this arrangement, capacitance of the capacitor. So Q by V is equal to C. It is known as the capacitance of arrangement, और इस arrangement को क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं. So capacitance. Now we discuss the unit of capacitance. Capacitance का unit क्या होता है? So see, capacitance C is equal to Q by V. Unit of Q is Coulomb. Unit of potential difference is volt. So it is Coulomb per volt. Now Coulomb can be written like this, capital C. Volt can be written like this, capital V. So this is CV inverse. Now student, here make one thing clear. This symbol C is the symbol for capacitance, and this symbol C is for the Coulomb. The symbol for the capacitance and the symbol for the Coulomb is same, that is capital C. Coulomb per volt is also known as farad. So 1 farad is equal to 1 Coulomb volt inverse. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1F is equal to 1 CV inverse, 1 Coulomb volt inverse. ठीक है, एक बार फिर से, ये जो C है वो Coulomb को रिप्रेजेंट करता है, चार्ज के यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर जो Q by V C है वो C किसका सिंबल है? कैपेसिटेंस का सिंबल है. सो 1 farad is equal to 1 Coulomb volt inverse. Now we see the symbol of capacitor. Symbol of capacitor. So I will draw two symbol of capacitor. One symbol for a capacitor having a fixed capacitance. Number 1, फिक्स्ड कैपेसिटेंस. तो अगर कैपेसिटेंस फिक्स है तो उसका सिंबल कैसा होता है? देखो, इस टाइप का सिंबल होता है. देयर आर 2 वर्टिकल पैरेलल लाइंस एंड दिस हॉरिजॉन्टल लाइंस आर फॉर द कनेक्शन, दे आर फॉर द कंडक्टिंग वायर्स. ओके, सो this is one conductor and this is second conductor, and these two conductors constitute the capacitor. तो ये जो conductors होते हैं, these conductors are known as the plates of the capacitor. तो जो plate होती है वो plate को ऐसे vertical line से represent करते हैं. So this is one plate of capacitor, this is second plate of capacitor, and this is the symbol for capacitor having the fixed capacitance. Fixed capacitance मतलब जिसका कैपेसिटेंस चेंज ना हो. सेकंड टाइप ऑफ कैपेसिटर इज वेरिएबल कैपेसिटर. वेरिएबल कैपेसिटर मीन्स द कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस कैन बी वेरीड. तो उसका सिंबल किस टाइप का होता है वो देखो. फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द सिंबल फॉर द फिक्स कैपेसिटर. इस तरह से ड्रॉ करना है, और फिर यहाँ पर ऐसे एक क्रॉस एरो ड्रॉ कर देना है. तो ये क्रॉस एरो क्या डिनोट करता है कि उसका जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस वेरिएबल है. उसका जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस को हम चेंज कर सकते हैं.
So this is the symbol for fixed capacitor and the variable capacitor. Okay. Now we discuss, I rub this portion, we discuss the capacitance depends on what. So understand, capacitance depend on नंबर 1 शेप. ये जो कंडक्टर्स है वो कंडक्टर के शेप के ऊपर डिपेंड करता है. ओके, यहाँ पर जो मैंने कंडक्टर्स ड्रॉ किए हैं दे आर हैविंग द आर्बिट्ररी शेप. बट सपोज इफ कंडक्टर्स आर हैविंग द स्फेरिकल शेप, if conductors are having the cylindrical shape, or if the conductors are having the shape like a rectangular or square plate, then their capacitance will be different. So it depends on shape. Number 2, it depends on size. जो कंडक्टर्स है उसकी साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है. एंड नंबर 3, it also depends on the सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टर्स. ये जो दो कंडक्टर है उनके बीच में जो सेपरेशन है वो सेपरेशन कितना है उसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है. एंड वन मोर थिंग आई टेल यू कि हियर द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द कंडक्टर्स. मतलब ये जो दो कंडक्टर है इनके बीच में जो मीडियम है वो कौन सा मीडियम है उसके ऊपर भी कैपेसिटेंस डिपेंड करता है. For an example, if there is a vacuum or there is a air or there is a ceramic or if there is some other material, तो वो सिचुएशन में उसका जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस वेरी होता है. ओके, नाउ हियर आई टेल यू वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. वी हैव टॉक अबाउट द कैपेसिटर एंड द कैपेसिटेंस. कैपेसिटर वी डिस्कस कि what is capacitor. Capacitance, I said that the ratio of charge and the potential difference. Q is what? Q is the charge on each conductor. मैंने आपसे कहा कि दोनों कंडक्टर के ऊपर चार्ज सेम होता है. इसके ऊपर प्लस Q चार्ज होता है और इसके ऊपर माइनस Q चार्ज होता है. सो दिस Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच कंडक्टर. और कैपिटल V क्या होता है? कैपिटल V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स. राइट, नाउ हियर I tell you the actual meaning of the capacitance. The actual meaning of the capacitance is the capacity to store the charge. तो आप ये भी लिख सकते हो, बुक में नहीं लिखा हुआ है. Capacitance means capacity to hold लिख सकते हैं या तो फिर स्टोर भी लिख सकते हैं. कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज. बेसिकली कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट टू स्टोर द चार्ज. देखो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक सर्किट होती है उसमें बहुत जगह पर चार्ज को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है. जैसे फ़ैन होता है तो फैन के अंदर चार्ज को स्टोर करने की ज़रूरत होती है. तो वहाँ पर जहाँ चार्ज को स्टोर करना है वहाँ पर कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. सो व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर मीन्स कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज एंड यू कैन से दैट कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट to store the charge. Arrangement to store charge. So this is about the capacitor and its capacitance. Please note down this and learn from the pamphlet. Student, we are going to discuss a special type of capacitor that is known as the parallel plate capacitor. It is widely used capacitor and in most of the numericals this type of capacitor will be there. So it is a parallel plate capacitor.
what it is. A parallel plate capacitor consists of two large plane conducting plates separated by a small distance. Parallel plate capacitor consists of two large plane plates, parallel plates separated by small distance. Now see here, this is the parallel plate capacitor. There are two large parallel plate. This is plate 1, I write here plate 1 and this is plate 2. So two plates are there, conducting plates are there, which are separated by a very, very small distance. The separation between the plate is small d, which is very, very small. The area of each plate is capital A. So small d is separation between plates. Capital A is equal to area of each plate. The amount of charge on the first plate is plus q and the charge on the second plate is minus q. So q is equal to charge on first plate minus q charge on second plate, right? On one plate there is a positive charge and on the other plate there is a negative charge. Sigma is the surface charge density on first plate. Sigma is equal to Q by A, surface charge density on plate 1, and minus sigma is equal to Q by A is surface charge density on plate 2, right? Now here the distance between the two plates is very, very small as compared to the area of each plate. So here we write, here d is very, very less, or d square is very, very less as compared to area. If d is very, very less, the square of d will also be very, very less, because d is very less, okay? So its square will be very, very less. So d square is very, very less than area of the plate. Now here, since the distance between the two plates is very, very less, the plates are comparatively very, very larger in size, we can use the formula for electric field due to very large plates. Student, understand one thing, here plates are not very large, okay? These are the plates with the finite size, but since the distance between the plate is very, very small, ये जो distance है ये बहुत ही small है, किसके comparison में? प्लेट के एरिया के कंपैरिजन में. सो वी कैन यूज द रिजल्ट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरी लार्ज प्लेट. सो यहाँ पर हम 3 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 मीन्स इन अ रीजन आउटसाइड द प्लेट 1, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2 इन अ रीजन आउटसाइड द प्लेट 2,
an electric field in a region between the plates. So see here, electric field number 1 in a region above प्लेट 1, प्लेट 1 के ऊपर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कितना होगा? सपोज आई डिनोट इट बाई E1, तो E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 0। अब ये कैसे आया देखो, ये जो पॉइंट 1 है, ये जो मैंने E1 लिखा है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है? इन अ रीजन अबोव द प्लेट। तो ये जो प्लेट 1 के ऊपर का रीजन है, वहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेंगे, वन फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एंड सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस नेगेटिवली चार्ज प्लेट। तो अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर रहा हूँ इन अ रीजन अबोव द प्लेट, तो ये प्लेट 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और इस पॉइंट पर मतलब अवे फ्रॉम द प्लेट 1 होगा, और इस पॉइंट पर ये प्लेट 2 का जो फील्ड होगा दैट इज टूवर्ड्स द प्लेट। सो टू इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जस्ट अ मिनट, ओके लाइट चली गई तो मैंने चेक किया कि बोर्ड पर का दिख रहा है कि नहीं। सो at this point two electric field are in the opposite direction, so they cancel, so we have 0. Number 2, in a region below plate 2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि inner region outside the plate 1, inner region outside the plate 2, आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो similarly E2 is equal to sigma by 2 epsilon 0 minus sigma by 2 epsilon 0 is equal to 0. So here also inner region below the plate 2 or inner region outside the plate 2, two electric field will be in the opposite direction. इस point पर ये जो plate 2 है उसका electric field इस direction में होगा towards the plate, और इस point पर plate 1 का electric field away from the plate होगा। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, E1 एंड E2 बोथ विल कैंसिल ईच अदर। ठीक है, तो इस तरह से सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। नाउ वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन बिटवीन द प्लेट्स। आई रब दिस पोर्शन, दिस ऑल्सो। So number 3, electric field in region between plates. So I am talking about this. So at this point, suppose if you consider some point, at this point electric field due to positive plate is in this direction, and at this point electric field due to negative plate is also in the same direction. So understand, inner region outside the plate, two equal electric field are in the opposite direction, and inner region between the plates two electric field are in the same direction, so they will be added. So electric field in a region between the plate, E is equal to sigma by 2 epsilon 0, sigma by 2 epsilon 0 is equal to sigma by epsilon 0. So E is equal to sigma by epsilon 0. Now student, understand one important concept here, fringing of field lines. Fringing मतलब बैंड होना, fringing of field lines. See, what is fringing of field lines? Here
the plates are having the finite size. Okay, so inner region close to the edges, मतलब यहां की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर edges, inner region close to the edges, the field will not be uniform, the field lines will bend over there. Okay, for the plates having the finite size, so this is known as the fringing of field lines. But this fringing of field lines can be avoided by taking the plates of finite area but having a very small distance between them. समझ में आया? तो ये जो प्लेट्स है वो इनफाइनाइट एरिया की नहीं है, फाइनाइट एरिया की है. तो अगर ये दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस लार्ज है तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि नियर द एज ऑफ द प्लेट जो फील्ड लाइन्स है वो फील्ड लाइन्स बेंड हो जाएगी. बट इफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज वेरी स्मॉल, दो प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वेरी स्मॉल, तो उस सिचुएशन में वो फ्रिंजिंग को आप अवॉइड कर सकते हो. फ्रिंजिंग विल बी वेरी लेस. तो फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड लाइन क्या होता है कि फॉर प्लेट ऑफ फाइनाइट एरिया field will not be uniform between plates and field lines will bend near edge. तो इसको कहते हैं फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड लाइन. तो फ्रिंजिंग को हम अवॉइड कर सकते हैं. कब अवॉइड कर सकते हैं हम? जब एरिया ऑफ द प्लेट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट. फ्रिंजिंग कैन बी निग्लेक्टेड, कैन बी इग्नोर्ड. ओके, सो यहां पर हम वो ही एज्यूम करेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ द प्लेट, एंड इन दैट सिचुएशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म बिटवीन द प्लेट्स. तो यहां हम लिखेंगे फॉर यूनिफॉर्म फील्ड बिटवीन प्लेट्स, दो प्लेट के बीच में जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है और कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 है. पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस. V इक्वल टू ED, जो फॉर्मूला आगे भी आया है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के टॉपिक में. सो वी हैव V इज इक्वल टू E इंटू डी. इज दैट क्लियर? तो E कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 इंटू डी. वी हैव दिस V. नाउ सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ चार्ज, सिग्मा इक्वल टू Q बाय A. So V equal to Q upon epsilon 0A into D. But what is capacitance? Here I write capacitance C is equal to Q by V. तो यहाँ पर Q by V ले लो, Q by V. So we get epsilon 0A by D. So C is equal to epsilon 0A by D. This is the formula for capacitance of parallel plate capacitor having vacuum between the plates, या तो फिर having air between the plates. याद रखना कि अगर किसी भी न्यूमेरिकल में ऐसा कहा है कि there is a parallel plate capacitor of this much area, distance between the plate is this much, and having a air between them or having a vacuum, air और vacuum दोनों में
ये फॉर्मूला यूज होता है। अगर एयर और वैक्यूम नहीं है, कोई मीडियम है, तो फिर उसका जो फॉर्मूला है वो हम आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पैम्पलेट में से अच्छे से लर्न कर लेना। Hello student, we have obtained the formula for capacitance of parallel plate capacitor. Now I want to explain you some calculation on the basis of that formula. For parallel plate capacitor, formula is C equal to epsilon 0 A divided by D. Now suppose we have a capacitor in which area of the plate is 1 meter square and the distance between the plate is 1 millimeter. So this is 10 raised to minus 3 meter. We obtain the capacitance of this capacitor. So C is equal to epsilon 0 8.85 into 10 raised to minus 12. A is 1. Distance between the plate is 10 raised to minus 3 meter. So this is 8.85 into 10 raised to minus 9 farad. So this is the capacitance of a capacitor whose each plate is having an area 1 meter square separated by a distance of 1 millimeter. So you just see that how small is the capacitance. 8.85 into 10 raised to minus 9 farad. You can also call it as 8.85 nanofarad. Okay, very small capacitance. Now I will do one more calculation and I will give you an idea how large is the 1 farad capacitance. Okay, so another calculation I do here. So we have a capacitor of capacitance 1 farad. The distance between the two plates is suppose 1 centimeter. So it is 10 raised to minus 2 meter. I will use the same formula, will make A as a subject of equation. A is equal to CD upon epsilon 0. So substitute the value of C is 1, D is 10 raised to minus 2, epsilon 0 8.85 into 10 raised to minus 12. Now student, here we will have to do some approximation, okay, to understand the thing better. So what I do, I take this 8.85 as approximately 10. It is not 10, but we want some idea. Okay, we don't want to do the exact calculation, we want some idea. So we take 8.85 as what? We take it as 10. So this is 10 raised to minus 2 divided by this 10 raised to minus 12. So this is how much? This is 10 raised to minus 2 plus 12 minus 1. So this is how much? This is 10 raised to 9. So A is equal to 10 raised to 9 meter square. So the area of the plate is 10 raised to 9 meter square. Okay. Now this 10 raised to 9 meter square, we write it as 10 into 10 raised to 8 meter square. A is the area of the plate. Let us assume that the plate are square. So area of square L square. So L square is equal to 10 into 10 raised to 8. So therefore L is equal to, we take a square root. Again we do some approximation. This is 10. The square root of 10 is slightly more than 3. 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 10 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 3 समथिंग होगा ना, तो इसको मैं ले लेता हूँ 3.
3 into 10 raised to 4 meter. So this is 30 into 10 raised to 3 meter. So L is equal to 30 kilometer. So length and breadth of a square plate is 30 kilometer. So why we have done this calculation? Student, suppose if we want the capacitor of capacitance 1 farad, then the dimension of the plate should be 30 kilometer. Now you just imagine how large is the plate of length 30 kilometer. तो अगर हमको 1 farad का कैपेसिटेंस चाहिए तो क्या उसके लिए 30 किलोमीटर की लेंथ की प्लेट ही यूज़ करनी पड़ेगी? उससे छोटी लेंथ की प्लेट नहीं चलेगी। 30 किलोमीटर तो मतलब क्या होता है, एक पूरा सिटी की लेंथ जितना होता है कि नहीं? तो 30 किलोमीटर की लेंथ की प्लेट तो पॉसिबल नहीं है। बट इलेक्ट्रिक सर्किट में ऐसी बहुत सारी जगह पर हमको 1 फैराड का कैपेसिटेंस चाहिए होता है। तो फिर 1 फैराड का कैपेसिटेंस हम कैसे ऑब्टेन करेंगे विदाउट a dimension of 30 kilometer? So student, we can construct a capacitor of capacitance 1 farad even with a plates of very small size. एकदम छोटी साइज की प्लेट का यूज करके भी हम 1 फैराड का कैपेसिटेंस क्रिएट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू, वी कैन इंसर्ट द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसके 2 प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दो। इट्स कैपेसिटेंस कैन बी इंक्रीज मैनी फोल्ड्स, उसका कैपेसिटेंस आप बहुत बढ़ा सकते हो। तो कैसे वो कर सकते हैं वो हम यहाँ पर समझेंगे। ओके, दिस कैलकुलेशन वॉज ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। आगे का टॉपिक समझने के लिए एक थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने क्रिएट किया, राइट? स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस। कैपेसिटर के 2 प्लेट के बीच में जब हम डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट होती है, दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड हियर। सो फर्स्ट आई विल कंसीडर अ कैपेसिटर, a parallel plate capacitor which is having a air or vacuum between its 2 plates. So look here, this is a parallel plate capacitor. A is the area of each plate of capacitor. Small d is separation or the distance between 2 plates of capacitor. Plus or minus Q is the charge on each plate of the capacitor. On one plate of capacitor there is plus Q charge and on other plate of capacitor there is a minus Q charge. Sigma is equal to Q by A is the surface charge density. Surface charge density on each plate of the capacitor, right? Now here we write certain formulas. E0, what is E0? Electric field between 2 plates of capacitor. So electric field between 2 plates of capacitor, कैपेसिटर की 2 प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना होता है? कैपेसिटर के 2 प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E0 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0. लेट अस डिनोट दिस एज इक्वेशन नंबर 1. इसमें ये जो सिग्मा है वो क्या है? सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी.
मतलब ये कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर जो चार्जेस है, आपको पता होगा कि कैपेसिटर की एक प्लेट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज होता है, दूसरी प्लेट के ऊपर माइनस क्यू चार्ज होता है. चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द प्लेट्स. तो एक प्लेट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज, सेकंड प्लेट के ऊपर माइनस क्यू चार्ज, राइट. तो कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो. और सिग्मा क्या है? सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन ईच प्लेट. मतलब इस प्लेट के ऊपर चार्ज की डेंसिटी सिग्मा प्लस सिग्मा, इस प्लेट के ऊपर चार्ज की डेंसिटी माइनस सिग्मा. ओके, नाउ वी राइट द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स. तो पी डी बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो पी डी बिटवीन द टू प्लेट वी ज़ीरो इज इक्वल टू ई ज़ीरो इंटू डी. ई ज़ीरो मतलब जब दो प्लेट के बीच में कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है. ओके, तो वी ज़ीरो इक्वल टू ई ज़ीरो डी. दिस इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू डी. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. Now I write the formula for capacitance. Capacitance of कैपेसिटर. ये जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा? तो C ज़ीरो इक्वल टू एप्सिलॉन ज़ीरो ए डिवाइड बाई डी. ये हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. तो अभी तक मैंने जो कुछ भी लिखा है दैट इज फॉर व्हाट? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एरिया ऑफ ईच प्लेट ए, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट स्मॉल डी, एंड बिटवीन द टू प्लेट्स देयर इज वैक्यूम या तो फिर देयर इज एयर. डाइइलेक्ट्रिक इज नॉट इंट्रोड्यूस. नाउ व्हाट वी डू? वी इंट्रोड्यूस द डाइइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में हम डाइइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं. कैसा डाइइलेक्ट्रिक? द डाइइलेक्ट्रिक हैविंग पोलर मॉलिक्यूल्स, जो आगे हमने टॉपिक डिस्कस किया था. सो वी नो दैट व्हेन वी इंसर्ट द डाइइलेक्ट्रिक बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ऑन प्लेसिंग dielectric between plates of capacitor in such a way that entire region between the plates is filled by the dielectric. ये पूरा के पूरा रीजन, दो प्लेट के बीच का पूरा के पूरा रीजन डाइइलेक्ट्रिक से फील हो जाए. इज दैट क्लियर? ओके, सो क्या होगा? when you place the dielectric between the two plates of the capacitor, then the dielectric is polarized. ये हमने आगे डिस्कस किया हुआ है. so dielectric is polarized. on the surface of the dielectric charges are induced and those charges are called polarization charges. those charges are called induced charges. so in that situation, what is the surface charge density on each plate of capacitor? Surface charge density after placing dielectric. So after placing dielectric, the surface charge density is plus or minus sigma minus sigma p. देखो, ये जो कैपेसिटर की प्लेट है इसके ऊपर जो चार्ज था उसकी डेंसिटी थी सिग्मा, और ये जो डाइइलेक्ट्रिक की सरफेस है, ये जिसको मैं अभी ओवरराइट कर रहा हूँ, उसके ऊपर जो चार्ज इंड्यूस होता है पोलराइजेशन के वजह से, जो चार्ज इंड्यूस होता है वो चार्ज की डेंसिटी होती है माइनस सिग्मा पी.
तो यहाँ पर डेंसिटी प्लस सिग्मा, यहाँ पर डेंसिटी माइनस सिग्मा, ठीक है। वैसे यहाँ पर जो प्लेट के चार्जेस की डेंसिटी होती है और डाइलेक्ट्रिक सरफेस के ऊपर जो चार्ज की डेंसिटी होती है, इट इज़ ऑल्सो हैविंग द ऑपोजिट नेचर। तो यहाँ पर डेंसिटी है सिग्मा माइनस सिग्मा पी। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। सो ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, on the plate of the capacitor the density of the charge is plus or minus sigma minus sigma p। प्लस और माइनस इसके लिए है क्योंकि इनके नेचर ऑपोजिट है, ठीक है। फॉर्मूला में तो हमको सिग्मा माइनस सिग्मा पी ही लेना है। तो अब कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं डिनोट करता हूं ई से। तो पहले जब कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो फॉर्मूला था E0 इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन ज़ीरो। बट जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया तो डेंसिटी है सिग्मा माइनस सिग्मा पी। तो फॉर्मूला होगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। आई डिनोट दिस एज इक्वेशन नंबर 4। ओके, नाउ स्टूडेंट, sigma p is the density of polarization charges। p for what? p for polarization। तो sigma p is the density of polarization charges। अच्छा, अभी ये जो sigma p होता है, ये sigma p किसको प्रोपोर्शनल होता है? तो this sigma p is proportional to the सरफेस चार्जेस। मतलब ये जो कैपेसिटर की प्लेट है वो कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर जो चार्जेस होते हैं उसको प्रोपोर्शनल होता है। या तो फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि सिग्मा पी इज प्रोपोर्शनल टू E0, ऐसा भी बोल सकते हो। अब ये E0 क्या होता है? E0 मतलब लिखा है ना, ये रहा। E0 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर When there was no dielectric, जब कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था? E0 था, बराबर। तो ये जो सिग्मा पी होता है, मतलब जो पोलराइजेशन चार्जेस होते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब की सरफेस पर, जो पोलराइजेशन चार्जेस इंड्यूस होते हैं वो किसको प्रोपोर्शनल होते हैं? E0 को प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा उतनी पोलराइजेशन चार्जेस की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो जो सिग्मा पी होता है वो प्रोपोर्शनल टू E0 होता है, और ये जो E0 होता है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। E0 किसको प्रोपोर्शनल होता है? E0 प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। इज इट क्लियर टू यू? ओके, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो सिग्मा माइनस सिग्मा पी है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। ठीक है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। देखो फिर से समझा देता हूं, सिग्मा पी प्रोपोर्शनल टू E0 होता है। कैसे होता है वो मैंने आपको समझाया कि कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा, कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा, प्लेट के ऊपर जो चार्जेस इंड्यूस होंगे, स्लैब के सरफेस पर जो चार्जेस इंड्यूस होंगे उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। द डेंसिटी ऑफ चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, आई रिपीट, द डेंसिटी ऑफ चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो सिग्मा पी E0 को प्रोपोर्शनल है, पर E0 सिग्मा को प्रोपोर्शनल है। देखो E0 के फॉर्मूला में सिग्मा आता है, तो E0 प्रोपोर्शनल टू सिग्मा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिग्मा माइनस सिग्मा पी है
ये क्वांटिटी ये सिग्मा को प्रोपोर्शनल हुआ, बराबर, क्योंकि जो सिग्मा पी है वो सिग्मा को प्रोपोर्शनल है। इन शॉर्ट, सो सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। यहाँ पर हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू 1/k सिग्मा, इस तरह से। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब मैं ये थोड़ा सा पोर्शन रब कर देता हूं। आप पैम्पलेट में से इसको रीड करोगे तो उसमें एकदम सिस्टमेटिकली लिखा हुआ है। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 5 हमको मिला। अब इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 4 में यूज करो। यूजिंग इक्वेशन 5 इन 4, सो क्या मिलेगा हमको? E इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी के प्लेस पर सिग्मा बाई के, सो 1/k इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। वी हैव दिस फॉर्मूला। लेट अस डिनोट दिस एज इक्वेशन नंबर 6। सॉरी, कंटिन्यूएशन में इक्वेशन नंबर 6। ओके, अब कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो भी हम लिखेंगे। तो PD बिटवीन प्लेट्स, तो PD बिटवीन प्लेट्स V इज इक्वल टू E इंटू डी। सो सिंपली इसको D से मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0k इंटू डी। वी हैव दिस। बट सिग्मा क्या होता है? सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया, तो वो लिख देते हैं। सो Q अपॉन एप्सिलॉन 0ak इंटू डी। वी हैव दिस। Q बाई V इज कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0ak डिवाइड बाय D। ओके, तो ये इक्वेशन समझ में आया। C इज इक्वल टू Q बाई V एप्सिलॉन 0ak डिवाइड बाई D। इक्वेशन नंबर 7 किसका इक्वेशन है? कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज ए डाइलेक्ट्रिक बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। एप्सिलॉन 0a बाई d is the capacitance when there is vacuum between the plates, and epsilon 0 ak by d is the capacitance when there is a dielectric between the plates. So we have this formula. Okay, now here if we take k equal to 1, अगर हम यहाँ पर k equal to 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? then C इक्वल टू एप्सिलॉन 0a बाई डी, मतलब वो C0 हो जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा, अब स्टूडेंट हमारा जो इक्वेशन नंबर 3 था, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 7, तो 3 कौन सा था? C0 इक्वल टू एप्सिलॉन 0a बाई डी, दोनों का रेशियो लेना है। तो C बाई C0, C तो मैंने यहाँ पर लिखा ही हुआ है, एप्सिलॉन 0ak बाई डी, और C0 था एप्सिलॉन 0a बाई डी। तो दिस इज इक्वल टू K, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, K बचेगा। सो C बाई C0 इज इक्वल टू K। सो C इक्वल टू C0 इंटू K। तो ये हमारा एक फॉर्मूला आया। We can call this as इक्वेशन नंबर 8। तो C0 क्या है? अब इसको सुनो ध्यान से। C0 क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ वैक्यूम और एयर बिटवीन द प्लेट।
C is a capacitance of capacitor with a dielectric between its plate. ओके, अब इसके ऊपर से हमको ये जो K है उसको डिफाइन करना है, तो वो मैं लिख देता हूँ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए सब्सटेंस is a factor. Dielectric constant of a substance is a factor, और वो जो फैक्टर होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1. Dielectric constant of a substance is a factor by which capacitance of capacitor increases by its value from vacuum. Dielectric constant of a substance is a factor greater than 1 by which capacitance of capacitor increases by its value from vacuum. मतलब वैक्यूम में जो वैल्यू होती है उस वैल्यू से कितने टाइम्स उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, ओके, वो फैक्टर है. तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए सब्सटेंस इज अ फैक्टर, मतलब ये एक फैक्टर है बाय विच कैपेसिटेंस इंक्रीजेस फ्रॉम इट्स वैल्यू इन द वैक्यूम. ठीक है, तो ये फॉर्मूला है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जब कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में हम कोई डाइइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट इस टॉपिक का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि इफ़ यू इंसर्ट द डाइइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर देन कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस बाय k टाइम्स. ओके, स्टूडेंट यहाँ पर एक पॉइंट रह गया है, कैपेसिटर इंक्रीजेस बाय इट्स वैल्यू फ्रॉम वैक्यूम व्हेन एंटायर रीजन बिटवीन प्लेट्स इज फिल्ड बाय डाइइलेक्ट्रिक. ठीक है, पैम्पलेट में थोड़ा सा वर्डिंग्स इधर उधर है, ये भी राइट है वो भी राइट है, तो आप कोई भी लिख सकते हो. ठीक है, सो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में ये 3 मार्क में आ सकता है, सो आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना. ठीक है.